ارے میرے چھوٹے والے نے دیکھو نا کیا کیا اچھا پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی اس کا کوئی بہت پرانا چل رہا ہے چکر اسکول سے چھوٹی کلاس سے. تو ایک دن وہ سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے ہی ہم لوگ بڑے والے کے لیے ہم کہتے چلو بھی اس کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں. میرے جیٹ کا بیٹا ہے تو وہ اس کا دوست بیٹھا ہوا کہتا آنٹی جس نے ڈھونڈا اس کے لیے تو ہاں کر دیں. میں نے کہا کیا کہتا ہاں. اچھا آپ کو نہیں پتا تھا؟ مجھے بالکل. اچھا میں اس سے ہم لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کوئی اتنا نمازی پرہیزگار بڑا مولوی ٹائپ کا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا اور وہ پسا کے بیٹھا ہوا ہے. چلیں آپ کے لیے تو ایزی ہو گیا نا. آج کل لڑکی کو بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ چیز فطری ہے لڑکوں میں تو وہ تو آنی ہی ہے اس سے ڈیل کرنے کا طریقہ. مجھے اچھا لگا. اور پھر اس کی بولڈنس آپ دیکھیں نا کہ اس نے کہا جائیں جا کے بات پکی کرے ورنہ اس کا رشتہ ہو جائے گا. اس کو یہ بھی خوف تھا. تو آپ آرام سے مان گئی تھی ویسے؟ ہاں مجھے اچھا لگا. اور آپ کے بڑے بیٹے نے کہا وہ تو میری چیز رونی تھی. نہیں میں نے اس کو بھی کہا میں نے کہا دیکھو چھوٹے والے نہیں تم بھی دیکھ لو اس کا پہلے آپ کر لیں میں دیکھ لوں گا. اور ابھی تک یہی کہہ رہا آپ ابھی رہنے دیں میں کر لوں گا میں کر لوں گا میں کر لوں گا. اور آپ کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تھی تب عائشہ کا بھی ایسے ہی تھا کہ دونوں سائڈ پہ پیرنٹس کی طرف سے بھی ہم لوگوں کو بھی اچھا لگتا تھا بچہ ان کو طرف سے بھی کوئی پرابلم نہیں تھی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. میں ان ماؤں سے بھی نہیں ہوں کہ جی ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جاؤں نہیں 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 یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے فلانا نہیں بھائی. اب تو آپ کو جہاں بھی اچھا رشتہ ملے آپ ضرور کریں. اچھا جیسے ابھی علی نے بات کی نا کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے وہ کتنا کیونکہ دیکھیے کبھی کبھی آپ کے ماں باپ میں کہتی ہوں ماں باپ میں سب سے اب اس ایج میں آ کے مجھے ہوتا ہے کہ ماں باپ کے آنکھوں میں نا ایک لیزر ہوتا ہے جو بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ میرے بچے کا صحیح دوست ہے. اب اس وقت آپ کو نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا بٹ آپ کے ماں باپ نا لٹرلی سینس کر لیتے ہیں. ماں کو تو فوراً پتا چلتا ہے کہ کون میرے بچے کے ساتھ سنسیئر ہے. کیسے ڈیل کرنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے بچوں کی کبھی کبھی جو پسند ہوتی نا ان کو تو صحیح لگ رہی ہوتی لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان دا لانگر رن کہ یہ گرین فلیگ اور جو بھی فلیگز ہیں ماں باپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ کو پہلے ان سے جا کے جب آپ کو پتہ چل جائے نا تو آپ جا کے یا لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو پرسنلی آپ مائیں چاہیے ماؤں کو ملنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو میرے بیٹے نے کرنی ہے یا پسند ہے تو آیا وہ لڑکی اچھی ہے یا لڑکا اچھا ہے کہ نہیں. اول تو آپ کو پہلی نظر میں پتا چل جاتا ہے لیکن اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے کہ اگر محبت پیار محبت سے دوستی سے ڈنڈا لے کے نہیں. ایک تو یہ چیز اور ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں مجھے لگتا ہے کہ ڈیل کرنے میں ایک تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ چیز فطری ہے اور ہوگی. ہاں مطلب ہو ہے نہیں کرنا ہے نہیں 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 بالکل. یا کون تھی وہ لڑکی جب اس نے پسند کر لی مجھے پتا چلا اس وقت ان کا ہے نہیں. ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کو یہ انسان پسند آ رہا ہے وہ آپ نے اچھی بات کہی کہ واقعی مل کے دیکھنا چاہیے. اس میں کوئی برائی نہیں. دوسرے میرا خیال میں ایک اور چیز جو ہمیں ڈر یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو معیوب ہو نا اس چیز کا ایک خوف رہتا ہے. وہ چیز میرا خیال میں بچوں کو نا صرف ریڈ فلیگز پوائنٹ آؤٹ وغیرہ کرنا کافی نہیں ہے. میرا خیال میں ان کو ٹرین ہی یہ کرنا چاہیے کہ اس دنیا کا مالک ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے. بالکل. اسے کیا پسند ہے کیا نہیں ہمیں اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے. اگر ان پرنسپلز کا لحاظ کرتے ہوئے ملنا چاہتے ہیں ملیں شوق سے ملیں. بس وہ چیز ہمیں ان کے دلوں میں ڈالنی ہے وہ لائن کراس کہ خوف خدا رکھو پیار رکھو اللہ کا. یہ نہیں صرف ڈر ہی رہے آپ پیار رکھیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں اسے کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. جس طرح سورہ نساء میں ایک حیا کی بات آتی ہے کہ جب مرد اور عورت ملیں یا لڑکا اور لڑکی ملیں تو ایک پرنسپل یہ ہے کہ آپ میں ایک حیا کیا ہوتی ہے ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے وہ ایک اچھی چیز ضروری ہے. تو وہ میرے خیال میں وہ ایک ہیزیٹیشن کی تلقین نا بچوں میں لانی چاہیے. ہاں ایک بڑے اچھے طریقے سے بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے فائن لائن ہے آپ کے بہت فائن لائن اور جو وہ اتنی باریک ہے لیکن وہ صرف محسوس کر کے آپ لڑکی اور لڑکے کا بھی پتہ کر سکتے ہیں بالکل ایسے اس کو اس چیز کا لحاظ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آپ ہمیشہ بچوں کے ساتھ ہو نہیں سکتے. نہیں ہو سکتے 100% ٹائم آپ ہو نہیں سکتے. انہیں خود اپنا بالکل انہیں خود اپنا وہ گارڈ پروٹیکشن اٹھا کے رکھنا خود کرنا ہے. اور وہ جیسے بات ہے نا کہ کبھی کبھی آپ کا بچہ کوئی
गलत बंदा अपने लिए पसंद कर लेता है और कभी कभी जैसे आप एकदम से बोलते कि नहीं बेटा ये चाहिए, ये नहीं तो कह सकते बच्चे फंस जाते हैं। यार ये तो मुकद्दरों की ये नहीं बात कह है। सकते, मैं बताऊँ ये नहीं कह सकते आपके, नहीं बेटा नहीं। मैंने जो किया, मेरे 2 बच्चों की, अभी छोटे की नहीं हुई, तो मैंने जो किया, मैंने कहा बेटा ये मतलब लाइक मेरी बेटी छोटी थी, मैं तो 18 ईयर्स में उसकी शादी की है, तो मैंने उस वक्त भी उसको ये कहा कि बेटे मुझे नहीं पता, अल्लाह का मर्जी थी, सब कहते हैं इतनी जल्दी, बट अल्लाह की मर्जी। मैंने वाकई अप्रोच किया थी कि आपको था कि अक्सर मैंने लोगों को देखे वो लोग कहते हैं बस जमाना बहुत खराब है। प्रोफेशनली बहुत आगे है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज्यादा, शी इज डूइंग वेल, सब कुछ सही। मेरा दामाद उससे 10-12 साल बड़ा है, ही इज इन एमिरेट्स लाइफ, उसने बहुत बहुत यान्जो तो इतनी क्यूट, इतनी वो इस तरह से था, मैं उसको जानती थी, मेरे नेबर्स में थे, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा, शुरू से टॉपर और ये और वो, बहुत अच्छा। तो मगर उसने जब अप्रोच किया तो मेरे मियाँ एकदम से नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी कभी बिल्कुल शादी नहीं कर सकता, और ये क्या है और वो क्या है, ये इस तरह से। लेकिन मेरी चारों तरफ से मेरे पास रिश्ते आ रहे थे, चारों तरफ से, तो मैं तो 2 नफल हाजत के पढ़ के और अल्लाह ताला से, मैंने किसी से, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि मैं उस वक्त खुद भी तैयार नहीं थी, आई वॉज क्वाइट यंग, 12-13 साल पहले, तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो मैंने तो सिर्फ अल्लाह मियाँ से कहा कि अल्लाह मियाँ मुझे नहीं पता, आई क्राइड अ लॉट, आई सेड अल्लाह मियाँ मुझे नहीं, अल्लाह मग़फ़िरली वक़्तिरली, कि अल्लाह ताला अगर खैर है, मुझे नहीं पता कि कौन सा रास्ता। और फिर मैंने अपनी बेटी, छोटी थी मगर मैंने उससे एक बात कही कि बेटा तुम क्या फील करती हो कि तुम कहाँ कंफर्टेबल, और थिंक अबाउट द मदर्स एज वेल, कि तुम कहाँ पे वो हो जाओगी। कितने लोग मुझसे नाराज़ भी हुए कि नहीं क्या रिश्ता ये वो फिलहाल, लेकिन ये कि मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कंसर्न होते हैं ना जी, फलाने की जी उसकी तो ये वो Perfection ठीक कहीं नहीं नहीं था, है। वो ही ठीक नहीं है, वो ये, अल्लाह पे भी अरे भाई जब जिम्मेदारियां पड़ती हैं खुद ब खुद सीधा हो जाता है। और ये तो मुकद्दरों की बात है कि आने वाली कैसी है, हमें भी अगर हम किसी के घर गए तो ये तो अल्लाह को पता था ना कि हम कैसे हैं। मुझे तो हमारे बच्चे, मुझे एक बात बताएं, हम अपनी बच्चियों को बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं शादियों के लिए कि बेटा देखो ऐसा मत करना ससुराल जाके, मतलब कुछ भी हो, माँ बाप जितना मर्जी पढ़ा भी रहे हो, हम अपने घर में भी अम्मी कहती थी खबरदार ऐसा ना कि मुझे वहां पे जाके ताने ना पढ़वाना। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये नहीं, लेकिन जैसे ना कि बेटा थोड़ा सलीका बचे, हम बेटों को नहीं, सवाल मेरा कंप्लीट होने देना कि हम बेटों को क्यों प्रिपेयर नहीं करते कि बेटा खबरदार किसी और की बच्ची को लेकर आना, तो उसको मैंने कहा था हम अपनी बेटियों को जरूर कह रहे थे बेटा सब्र अपने अंदर रखना है, ये करना है वो करना है, तुमने घर चलाना है, तुमने, हम बच्चियों को सिखा रहे थे कॉम्प्रोमाइज करना, बेटा कॉम्प्रोमाइज। हमने बेटों को क्यों नहीं सिखाते कि तुमने भी एक जिंदगी जब शुरू करनी तो तुम्हें भी कॉम्प्रोमाइज करना है। पता क्या, मुझे लगता है कि वही बात आ गई ना, मेन ट्रेनिंग तो आपके अपने घर से होती है। ट्रू, आपके पेरेंट्स में अगर वो ट्रेनिंग नहीं होगी ना तो आपके बच्चों में भी नहीं हो सकती। आपके बच्चे वही देखते हैं, वही अपनी बीवियों के साथ भी वैसे ही सलूक करते हैं। अगर मेरा हस्बैंड मुझे रोजाना सुबह उठ कर थप्पड़ रसीद करेगा, गालियां देगा, तो मेरे बच्चे भी वही करेंगे। जब उन्होंने अपने बाप की कभी आवाज ही नहीं सुनी तो वो कहाँ से बोलेंगे, वो क्या करेंगे? उनके लिए तो वो भी वैसी जैसी माँ है। तो मुझे नहीं लगता, ये पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है। इसलिए पेरेंट्स ना आप वो असूल ही दे सकते हैं। इस तरह हमारी बेटी अमेरिका में पढ़ रही है, इकलौती बेटी है, शी इज लिविंग एक लड़की के साथ शेयर करती है एक अपार्टमेंट, लेकिन टोटली ऑन हर ओन है। हमें ये कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है कि वो डील कर सकती है, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मेरे ये कॉन्फिडेंस माँ बाप देता है ना, बात तो है ना, जिसमें बाप का ज्यादा किरदार होता है। मैं कहती हूँ आप कोई लड़की इफ शी इज डूइंग, मैं नहीं समझती, माँ का ज्यादा होता है। कि देखो बाप तो सुबह का गया शाम में आया, उसको तो नहीं पता ना कि आपकी सारा दिन बच्चों की क्या रूटीन थी। बाप ने अगर संडे को पूरा डे अपने बच्चों के साथ गुजारा है तो उसको वो भी नहीं पता चलता। लेकिन माँ तो भाई एक आंख से देख के बता देगी, हाँ भाई हाँ, लेकिन निजाबा बहुत सारी जब आप बच्चों अकम्प्लिश बच्चियों को देख रहे होते हैं ना तो उनके पीछे बाकी उनके बाप का किरदार होता है। जैसे मुझे भी वो मुझे पता है मेरे अबू पीछे फादर तो होती, लेकिन मैं कह रही माँ ज्यादा रोटी जलाई पहला तो टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं बच्चे माँ के साथ, क्योंकि बाप अगर रात को लेट आते हैं या काम पे होते हैं। लेकिन मैं बात करी कॉन्फिडेंस के, जैसे उन्होंने कहा ना ये बच्चियों को जो कॉन्फिडेंस, आपको पता ना कि आप कहीं भी जाके किसी का मुंह तोड़ के आ सकते हैं, वो बाप से तो वो आपके बाप से बात की ना, डैड इज योर फादर ऑन योर बैक, वो तो बाप से मिलता है, वो तो बाप से मिलता है। लेकिन आपने भी लड़कियों को भी फिर आगे बच्चियों को देखना होगा कि हर बात पे बाप को परेशान नहीं करना। माय फादर यूज्ड टू से बेटे शर्म
आपकी आंखों में होती है, कपड़ों के। उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि ये नहीं और वो नहीं। उन्होंने कहा बेटा आप अपनी उंगली पकड़ाएंगी तो कोई बाजू पकड़ेगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें कुछ कह दे या हाथ भी लगा दे। तुम्हारी इतनी तुम उस दो ही नहीं कि कोई आगे वो का, और आई एम श्योर कि आप नहीं देंगी कोई कुछ। और ना बच्चों को ना बाउंड्रीज बिल्ड करना भी सिखाना चाहिए। हमारे साथ कॉलर मौजूद है मलिक राशिद कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदिया, आपका प्रोग्राम एज यूजुअल बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया। और मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। और निदा साहिबा, अली ताहिर माशाल्लाह हमारे बड़े ड्रामा इंडस्ट्री के एसेट हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है, बड़ा अच्छी डिस्कशन भी हो रही है, तो मैं एक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है, उसका मफहूम बता रहा हूँ कि बच्चों की तरबियत आपने 3 पोर्शन में करनी है। कि पहले 7 साल ऐसे करें जैसे आपका बच्चा जो है वो आता है और आप उसके गुलाम हैं। दूसरे जो 7 to 14 ईयर है उसमें ऐसे करें कि जैसे वो आता है और आप उसके गुलाम, आप आका है और वो गुलाम है। गुलाम है, सही जी। और जब 14 साल से 21 साल तक आए तो फिर उसको अपने कामों में जिंदगी के जो मुशावरत है उसमें उसको पार्टिसिपेट करवाएं, बिल्कुल उसको वजीर बना के, बिल्कुल उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। लेकिन हमने देखे सबसे ज्यादा जरूरी माँ का तो किरदार ऐसा है कि वो मोनोपोली है बच्चों के बारे में। वो तो हम उस जैसी तो कोई मिसाल ही नहीं है कि जो वो बच्चों के ऊपर जो इन्फ्लुएंस माँ का होता है वो पूरा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बच्चों की जैसे हम थोड़ा सा फर्क कर लेते हैं ना लड़के का या लड़की का, लेकिन मैं बड़ी छोटी सी मिसाल है और बड़ी ही इन्फ्लुएंस करती है कि जैसे बच्चों की तरबियत थोड़ा सा मुर्गी से भी हमें सीखना चाहिए। जब वो मुसीबत आती है तो अपने परों के नीचे लेती है तो वो देखती नहीं है कि इसमें बच्चा कौन सा है और बच्ची कौन सी है, वो दोनों को इकट्ठा पालती है। तो इसी तरह हमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए, बच्चों को तरबियत बिल्कुल इसमें कोई डिफरेंस नहीं रखना चाहिए। हमने आजकल देखे, आपने बच्चों को देखे, हमारे यहाँ पहले मैं देखता हूँ कि स्कूल हमारे बच्चों के बड़े कम होते थे। अब हमने स्कूल दे दिया है लेकिन स्कूल ऑफ थॉट नहीं दिया। हमने बच्चों को क्या दिया, सबसे ज्यादा जरूरी छोटे बच्चों को लम्स जरूरी है। हमें अपना टच देना चाहिए मोहब्बत का, जिससे वो लैस कर रहा है। वो टच है ही नहीं बच्चों के साथ, हमारा रिलेशनशिप भी वो नहीं रहा। वो एक रिलेशनशिप डेवलप करता है मुआशरे को, फिर जब बच्चा बड़ा अच्छा जिंदगी में काम आता है आपके। हमने बच्चों को इस तरह करके तरबियत ही नहीं दी। तो ये चीज इसको लेके चलना चाहिए, बिल्कुल इनको आप दूर ना करें। अपने बच्चों को मोहब्बत की जरूरत है। आपने बहुत अच्छी बात की। हाँ, बहुत अच्छी बात की। चलिए मैं बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, आपने लम्स की बात की। अच्छा, जैसे मैं अरूसा ने बात की तो मैं अरूसा से कि हम लोग इसमें मुझे भी लगता है मैं रिलेट करती हूँ, क्योंकि जैसे मेरी अम्मी बहुत सख्त थी तो बहुत खुल के कभी मोहब्बत का ना इजहार नहीं करती थी। कभी कहता ना आप कहते हैं गले से लगाओ, जैसे मैं अपने बच्चों को ऐसे बहुत गले लगाती हूँ। तो हाँ, जब शादी हो गई फिर दूसरे शहर चले गए तो फिर अब जाए तो वो बहुत गले लगाती थी। लेकिन वो जो बचपन वाला आपको होता है ना कि आपको कहते हैं एक टाइट सा हक चाहिए होता है बच्चे को, कि आप रोज आए तो आपकी माँ आपको हक, कि आप सिक्योर फील करो, आप सिक्योर फील करें, फील करो कि मतलब मेरी वैल्यू है, मुझे वैल्यू दी जा रही है। बिकॉज वो फिर बच्चा जो है वो वैल्यू बाहर से सीख करेगा, वो गलत है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि वो बचपन से जो है वो एक्सप्रेसिवनेस शो करें। हाँ, ये वाली बात। अच्छा, वही जो हम अपने बच्चों को क्यों प्रिपेयर नहीं करते, हम लड़कियों को प्रिपेयर कर रहे हैं शादी के लिए और हम उसको कह रहे हैं कि बेटा यू विल बी द होम मेकर, तुम चीजें तुमने, हम अपने लड़कों को क्यों नहीं समझाते? मैंने अपने बेटे को समझाया, जब उसकी शादी बहुत जल्दी हुई है, मैंने आपको बताया था 23 इयर्स में मैंने की, अल्लाह का हुक्म है। और आई एम हैप्पी, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, 23 इज अ गुड एज, डूइंग वेरी वेल। दोनों से वो से 1 साल छोटी थी और माशाल्लाह दे वेरी हैप्पी। तो माशाल्लाह। तो मैंने अपने बेटे से एक बात कही, शादी के 1 हफ्ता पहले मैंने उसको बैठाया, अपने बेटे को समझाया कि बेटा यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल बी वेरी नाइस विद हर। कभी उसे ऐसी कोई बात नहीं कहना, कभी अब्यूसिव मत होना। कभी मैं चाहती हूँ कि लोग ये कहें कि तुम मेरे बेटे हो। और उसने कहा मम्मा आप, ही इज़ वेरी स्वीट, वो तो बहुत ही खैर। उसने कहा मम्मा आपको मेरा पता है। मैंने कहा मुझे पता है, लेकिन तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम बहुत अच्छे हस्बैंड होगे, और ताकि सब लोग कहें कि कितनी अच्छी अपब्रिंगिंग की है। लेकिन जैसे आप बात करें कि आपने शादी से पहले से कर, मेरा बेटा भी, मेरी टीम को ही पता है, वो भी माशाल्लाह 3.5 साल का है, तो मैं उसको भी कह रही थी अरे है भी मुझे अगलों की बेटी को सामने जलील ना करा देना कि कैसे। तो मैं कहती कि मैं तो नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी बहू हो उसको याद रहे कि हाँ भी मेरी सास बड़ी
अच्छी थी, तो उसने अच्छी तरबियत की। तो ये वाली जो सोच ना, मुझे लगता है हमारे बुजुर्गों में शायद उतनी नहीं थी। आपको क्या लगता है कि क्या बड़ी रीज़न है हम अपने लड़कों को क्यों प्रिपेयर नहीं करते रिलेशनशिप्स के लिए, शादी के लिए, घर चलाना कैसे है, और कुर्बानियों के लिए? हमने अपने बेटों को कभी किसी कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ के लिए क्यों तैयार नहीं किया? हाँ, कुर्बानियाँ तो मेरा ख्याल में मर्द भी काफ़ी देते हैं और औरतें भी बहुत देती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो चीज़ हम लोग सीख जाते हैं जब सर पे आके पड़ती है। हालांकि हाँ, बिल्कुल ये बचपन से बताना चाहिए कि देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा, वो एक अच्छे रिलेशनशिप को चलाने का हिस्सा होता है। मुझे जो ख़ास तौर पर इसमें बच्चों की अपब्रिंगिंग में फील होता है कि हम लोग उनके मसाइल को ना अपनाते और समझते नहीं हैं। हम लोग हमेशा एक हुक्म के लेवल पे रहते हैं, उससे वो दोस्ती ख़त्म हो जाती है। आपको पेरेंट्स अफसर के तौर पे नहीं चाहिए, आपको उनकी एक दोस्ती और मोहब्बत चाहिए। वो चीज़ मुझे लगता है कि उसमें होता ये है कि मर्दों को एक अफसरी का दर्जा दे दिया जाता है कि दफ्तर जाएगा, कमाएगा, और वो एक सिर्फ प्रोवाइडर के फॉर्म में रह जाता है। मेरा ख्याल में वो एक सोसाइटल चीज़ बन गई हुई है कि हमें आदत होगी और हम उस चीज़ को दोबारा सोचने को तैयार भी नहीं है। हाँ, कि मर्द का भी रोल अब चेंज हो रहा है, जिस तरह डायनामिक्स चेंज हो गई, लेकिन सोच वही है। हाँ, सोच वही रह गई हुई है। हम लोग वाकई ये चीज़, जिस तरह मैं भी कह रहा था, मुझे अपनी बेटी से कई दफ़ा जनरेशन गैप की वजह से समझने में मुश्किल आती है। वो डायनामिक्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में वाकई मर्दों को भी उतना ही प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ा चेंज आ रहा है ना। बिल्कुल, ख़वातीन भी ये चाहेंगी कि बाहर काम करें, और ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत कर रही है। हाँ, मतलब आप ना उनको रोकना इसमें बनता, कोई बुराई नहीं है, बहुत हाँ, अच्छा कोई है। भी बुरी बात नहीं है, आपकी ना दीनी तौर पे ना सोशल तौर पे। जिंदगी सुकून से गुजरती है। आजकल के लड़के प्रेफर करते हैं कि लड़कियां काम करती हों, क्योंकि वो कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये भी एक और भी वजह है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक और बहुत अच्छी वजह है जो काम करने वाली औरतों की, फजूल की बातों का टाइम नहीं रहता। टाइम नहीं होता, अच्छा मियां से फालतू में नाराज होने का भी टाइम नहीं होता। हाँ, तो ये नहीं किया तो वो नहीं किया, मतलब वो भी बिजी है, वो भी बिजी है, रात को मिले अच्छे मूड में दोनों मिल लिए, ठीक है ना। मतलब सारा दिन सोचने का क्या होगा। लेकिन उसके अलावा बाकी आजकल में हमारे जो शो में अक्सर मैच मेकर्स भी आते हैं, वो भी कहती हैं, हम भी अपने आसपास भी देखते हैं, वो कहते हैं भाई नहीं, बड़े ख्वाब हैं और मुझे उनको चेस करना है, तो जो आए वो भी कमाती हो ताकि मिल के चेस कर ले कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी